So let's start with the exercise 5.3, question number 4. The name of the chapter is index number. Index number. So there are in exercise 5.3, there are two types of problem. Uh, in both the case, we have to calculate cost of living index number. Living index number. And the cost of living index number is represented as CLI. It is represented as CLI, which is cost of living index number. There are two formulas. CLI. पहला formula है, it is summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100, which is same as last year's. तो in case अगर तुम्हारे पास P और Q price and quantity दिया रहेगा, तो we are going to use this formula for CLI, which is cost of living index number. Otherwise, there are one more formula to get the CLI. It is summation of IW upon summation of W. It is simple. एंड जनरली एग्जाम में तुम्हें सेकंड क्वेश्चन के सेकंड टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. इट इज आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू वेयर आई रिप्रेजेंट प्राइस रिलेटिव and W represent the weight. Okay, so now first time problem I already solved in my last video. Today we are going to start with the second type problem, CLI, where we have I and W. So let's start with the question. Fourth. Fourth question, we have group, we have food, clothing, fuel, lightning, house rent, and etc. So in fourth question, the question is over here. Base year weight W and current year price relative I are given in the problem 4 to 8. The 4, 5, 6, 7, 8. Calculate the cost of living index in each case. So we have to calculate the cost of living index, that is CLI. So let's start with CLI. This is I and W type 2 problem. So what we are going to do, we'll write the values vertically. The first one was group, second one is I, and it is W. Group में तुम्हारे पास दिया, it is food, clothing, fuel and lighting, house rent, miscellaneous. I 70, 90, 100, and it is 5, 6. So whenever we are calculating CLI, that is cost of living index number, we'll make one more column, which is I into W. So 70 into 5, 90 into 3, 100 into 2, 6 into 4, and 8 into 6. Make the addition of the last two column only. So it will be 0, which is 1540. IW का addition and W का addition.
बस वी नीड ओनली दिस टू एडिशन. CLI का फॉर्मूला है समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W. इनटू 100 नहीं करना है. इट इज समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W. सो वैल्यू सबस्टिट्यूट करो. 1540 अपॉन 20. 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 7s are 2 7s. 77 is the final answer. So it is so easy questions. बस तुम्हें क्वेश्चन में I और W रहेगा and rest of the sums accordingly I W तीन कॉलम बनाना है. लास्ट के दो कॉलम का एडिशन और उसको डिवाइड कर देना. That's it. Clear? Yes, sir. 5 6 7 और 8 नहीं 5 6 तो सेम टाइप का है. 7 और 8 भी काइंड ऑफ सेम ही है. कॉस्ट ऑफ का ही है बट इसमें तुम्हें अननोन निकालना है. जैसे कि यहाँ पे x बोला है या यहाँ पे y बोला है और क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की वैल्यू लिख के दी. इट्स 150 और यहाँ पे 200. आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. This is again the similar kind of questions where we have the index number. Index number हमें दिया हुआ है. We need to calculate the value of y. मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. Okay, let's start. Group I W and we'll make one more column IW. Group is given as again the same: food, clothing, fuel and lighting, house rent, miscellaneous. 180, 120, 160, 300 and 200. W 4, 5, 3, Y and 2. We'll calculate IW. We'll do in the same way. 180 into 4, 120 into 5, 160 into 3. It's 300Y and 2 2s are 4. Do this addition. Keep plus 300Y as it is because it is containing Y, and rest of the values we'll have to add. This is 0, 0, 1, 22. So 2, 2, 0, 0 plus 300Y, and I do addition of Y, which is 14 plus Y. Now we'll write CLI, the formula. It is 200. 2, 2, 0, 0 plus 300Y upon W, which is 14 plus Y. That is 200, 14 plus Y. Okay, do this calculation. 14 2s are 28 plus 200Y okay, transfer the term. This is over there, which is 100Y. This will be 600. So your Y will be 6. The value of Y is 6. Correct? So in this way, we have to solve. So I don't think यहाँ पे doubt रहेगा. Clear है ये भी सब?
Let's start with the question number 9. Question number 9. Now, एक फॉर्मूला इसमें पढ़ना है फॉर 9th क्वेश्चन. रियल इनकम is equal to income upon CLI into 100. It means income and CLI दोनों एनालॉगस होता है. CLI रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमारे पास ग्रुप में मतलब फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस, ये सबके अलग अलग खर्चे रहते हैं. मतलब 180 रुपीज नहीं है, इट इज 180 100, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 100 हो सकता है. तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग क्या, और नीचे वेट. वेट मतलब सबसे मतलब बेसिकली फूड क्लोथिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका वेट सबसे ज्यादा रहेगा, और जिसका इंपॉर्टेंट सबसे कम रहेगा उसका लीस्ट इंपॉर्टेंट है. जैसे भी क्लोथिंग जिसको वेट 5 दिया मतलब इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन दो उसका रेट कम रहेगा लेकिन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर फूड विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यूल एंड लाइटिंग इज 3, एंड मिसलेनियस विच इज 2, मतलब जो बाकी खर्चे उनका इंपॉर्टेंट कम है. तो इसके बेसिस पे वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल जज यू कि मतलब तुम्हारा इतना इंडेक्स है, मतलब तुम इतना, जैसे कि भी कोई बंदा कोई बंदा अभी समझो कि सोसाइटी चेंज हो रही है, मतलब एक हाई सोसाइटी में रह रहा है और एक दूसरा सा लो सोसाइटी में रह रहा है. तो दोनों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सेम नहीं है, बल्कि क्योंकि उनके जो खर्चे हैं, जैसे रेंट पे करना, फिर अपने कुछ सेविंग में डालना, फिर मिसलेनियस खर्चे, फिर अपना फूड में, क्लोथिंग में, तो दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग रहेगा. तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड अलग अलग रहेगा, तो समझो कि जो सोसाइटी जो लो सोसाइटी में रहता है उसका अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 200 है, तो जो हाई सोसाइटी में रहता है उसका मतलब अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली 300 आ रहा है, मतलब उससे 100 मोर है. मतलब उससे क्या रहेगा, 100 मोर रहेगा, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग विल टेल यू अबाउट हाउ विल बी द कॉस्ट फॉर इज लिविंग. ठीक है. तो डेफिनेटली अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर चेंज हो रहा तो डेफिनेटली तुम्हारा इनकम भी तो चेंज होना चाहिए. तो इसका मतलब इनकम और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दोनों एनालॉगस होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा है तो तुम्हारी इनकम भी बढ़नी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कम हो रहा है तो तुम्हारी इनकम भी कम होनी चाहिए. डेफिनेटली इनकम कम रहेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो कम ही रहेगा, और इनकम ज्यादा रहेगी तो तुम्हारे पास पैसे ज्यादा रहेंगे तो खर्चे भी ज्यादा कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995. तो एक 1905 है और 1999 है. दोनों में तुम्हारे पास 140 और 200, मतलब ये तुम्हारा खुद का स्टैंडर्ड चेंज हुआ है. 1995 में इट वाज 140 एंड 1999 में इट वाज 200, इट इज 200. A person earns rupees 11,200 per month in the year 1995. तो तुम्हारा बेस ईयर में तुम्हारी मंथली इनकम दी हुई है. What should be his monthly earning in the year 1999 in order to maintain his standard of living as the year 19? तो अगर उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मतलब 140 से 200 हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो थोड़ा बड़ा आदमी बन गया है. इसका मतलब ये है कि उसका स्टैंडर्ड जो था, मतलब खर्चे जो थे, जो पहले 140 में हो रहे थे, अभी वही खर्चे को 200 पे करना पड़ता है, बिकॉज हर एक चीज का रेट बढ़ गया है. नाउ इट इज व्हाट, 200. तो अभी वो 200 के लिए उसका इनकम क्या होना चाहिए, डेफिनेटली इनकम मस्ट गेट इंक्रीज. तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं पहले लिखूंगा फॉर ईयर 1995 में स्टार्ट करूंगा. तो उसकी इनकम कितनी थी, इट इज 11,200. सो आई विल टेक इसका CL है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है, इट इज 140. तो आई विल कैलकुलेट इट्स रियल इनकम. रियल इनकम ये होता है जब एक कोई स्टैंडर्ड बंदा रहा है जिसका अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग 100, हमेशा 100 लेते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड बंदा रहा है तो उस समय उसकी इनकम क्या होनी चाहिए, उस समय उसकी इनकम क्या होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रियल इनकम. क्योंकि ये जो इनकम दिया है उस समय कॉस्ट ऑफ लिविंग 140 है. तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 विच इज कॉल्ड एज द बेस वैल्यू, तो अगर 100 रहेगा ऑन एन एवरेज, तो उस समय उसकी रियल इनकम क्या रहेगी, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो रियल इनकम का फॉर्मूला है इनकम अपॉन CLI into 100. Its income is 11,200 upon CLI which is 140 into 100. कैलकुलेशन करेंगे तो 14 8 जा
80 और हाँ, तो इसका मतलब अगर कोई उसी ईयर में 1995 में अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाए, नॉर्मल होना चाहिए खर्चा, वो 100 अगर मैं CLI ले रहा तो उस समय इनकम 8000, मतलब अगर इनकम 8000 रहेगी तो इजीली वो बंदा सरवाइव कर सकता है आराम से। बट उस समय मेरा जो इनकम है वो 11,200, मतलब थोड़ा ज्यादा, मतलब कंपेरेटिवली मैं उस समय भी थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। अब इसी को मेंटेन करने के लिए इन ईयर in year 2000 what should my income, so now income we have to calculate now। पहले दिया था लेकिन अभी इनकम निकालना है। रियल इनकम सेम रहेगा, मतलब वो 100 के बेसिस पे ही चलेगा। तो रियल इनकम तुम्हारा 8000 है। अब तुम्हारा CLI हो गया 200, तो अब उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? अगेन द सेम फॉर्मूला, रियल इनकम, इनकम अपॉन CLI into 100। इनकम इज योर, रियल इनकम इज योर 8000, इनकम दैट यू नीड टू कैलकुलेट। दोनों में मैंने सेम फॉर्मूला यूज किया, बट एक फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले में इनकम पुट करके रियल इनकम निकाला। सेकेंड वाले में वही रियल इनकम पुट करूंगा और इनकम निकालूंगा जब मेरा CLI 200 हो गया। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 वहां मल्टीप्लाई। तो टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही शुड हैव और ही मस्ट हैव हिज इनकम 16,000। कितना होना चाहिए? 16,000। ठीक है।